Hello and good morning to everyone. Today we are going to study chapter number 14, When the Earth Shook, part 2 in ENV subject of 5th standard. In the previous part we have seen that how the earthquake has struck in Jasma's village on 26th January 2001, and there was a lot of damage and destruction around. A lot of people came there to help, and a rescue operation was carried out by the army people. And we have also seen how doctors, nurses, they have treated the injured people, and the engineers and architects have given the special discount to the village people for making the new houses. And what we are going to do if an earthquake happens, okay, which are the points we have to keep in mind when an earthquake happens. Okay, so now let us start from where we have stopped. Read the following questions and write the answers in the space provided. Before write the answer, before count the sum, you have to read the questions carefully. Okay, who help read this report on the Bhuj earthquake. ये एक रिपोर्ट दिया गया है न्यूज़पेपर में भुज के अर्थक्वेक के बारे में. Okay, and that we are going to read it. You can see in the picture they have given newspaper in the picture. Okay, this will be the situation of the place where an earthquake occurs. जहाँ पर earthquake आता है उस जगह ऐसी situation हो जाती है. Now, अहमदाबाद जनवरी 26 2001. ओके, और 26 जनवरी 2001 को पेपर में ये आर्टिकल छपा था. एटलीस्ट 1,000 पीपल वर फियर डेड इन द अर्थक्वेक दैट स्ट्रक गुजरात दिस मॉर्निंग. आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1,000 लोगों के मरने की आशंका है. मैनी थाउजेंड्स हैव इंजर्ड, और हज़ारों लोग घायल भी हुए हैं. आर्मी जवान्स हैव बीन कॉल्ड इन टू हेल्प. मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया था. एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फॉलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद. कम से कम, और अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें गिर गई थी. इन दिस देर आर अ डजन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग. इनमें लगभग 1 डजन बहुमंजिली इमारतें थी. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बिग बिल्डिंग थे, इसमें से 12 से 12 बिग बिल्डिंग भी गिर गई थी. By this evening, around 250 bodies have been removed from this building. आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं. It is feared that several thousand people may still be trapped. कहा जा रहा है कि अभी भी कई हज़ार लोग गिर गए या पड़ी हुई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं. रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन. बचाव कार्य तेजी से चल रहा है. There is perhaps no building in the city which has not developed cracks. शायद ही कोई इमारत होगी शहर में शायद ही ऐसी कोई इमारत होगी जिसमें दरारें न पड़ी हो, क्रैक डेवलप न हुई हो. सभी बिल्डिंग में क्रैक पड़ गई थी, क्रैक गिर गई थी. द सिचुएशन इन भुज इज़ इवन वर्स. भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है. पीपल आर रनिंग अराउंड इन शॉक एंड पैनिक. People are running around in shock and panic. तो चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचा रहे हैं. Within an hour of earthquake, the fire engines had reached and started work along with the local people. और अर्थक्वेक आने के 1 घंटे में फायर इंजन के जो लोग हैं
वो लोग वहाँ पर पहुँच गए और गांव वालों की मदद से गांव वालों की मदद से वो क्या है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लोगों को बचाने का काम चालू कर दिया। ऑफर्स टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड। तो राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। सो फ्रॉम हमारे कंट्री के कोने कोने से को लोग क्या है, हम आपको इतनी मदद देंगे, इतनी मदद देंगे, और विदेश से भी लोग ऐसी मदद देंगे। ओके, ऐसी आश्वासन क्या है भुज के लोगों को मिल रही थी। नाउ 10:40 को जो class after 40 minutes each period है। right, according to the TV report, thousands of people were injured and some died in Gujarat. अब दूसरे 40 minutes तो दूसरे पीरियड से तो कितना बचता है? टीवी के रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हजारों लोग घायल हुए और मर भी गए। If the buildings had been made in a way that they would not fall in the earthquake, would the damage have been different? How? तो अगर यह बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो क्या नुकसान में कुछ अंतर होता क्या? तो यस, there would have been the difference in the damage if the houses were made of earthquake resistance designs. Okay, there will be least damage. कम से कम नुकसान हुआ होता अगर ये जो बिल्डिंग है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनी होती। At times like this, when people have lost their homes and all their belongings, what kind of help would they need? तो ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे, तब लोगों को किस किस तरह का राहत की ज़रूरत पड़ी होगी? तो पीपल नीड, ओके, ऐसे समय पे सबको क्या चाहिए? तो दे नीड फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, वाटर एंड टेंट टू लिव। ओके, एंड इफ दे आर इंज्योर्ड देन दे आल्सो नीड अ doctor for the treatment. In such situation, whose help would be needed and for what? Write in your notebook as shown here. तो ऐसे में किन किन की मदद की ज़रूरत पड़ती होगी और किस काम के लिए? You have to write down that in your notebook, or you have to write down this in your table. Whose help will be needed? तो पहले में दिया है डॉग, तो हाउ विल दे हेल्प? तो डॉग हमें कैसे मदद करेगा? टू स्मेल आउट वेयर पीपल आर लाइंग ट्रैप, तो सूंघ कर जानने की लोग कहाँ दबे हैं वो हमें कुत्ता बता सकता है। देन यू कैन राइट डाउन डॉक्टर्स, ओके, दे ट्रीट द इंजर्ड पीपल। यू कैन ऑल्सो राइट laborers or army peoples or soldiers, okay, to remove the rubble, काटमाड़ हटाने के लिए सबकी ज़रूरत पड़ती है। देन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोवाइड रिलीफ मेजर, okay, NGOs, they all will give what? Food, clothes, medicine, water and tent. Now discuss, have you ever seen people in your area helping each other on when? तो क्या तुमने कभी अपने इलाके में देखा है कि आसपास पड़ोस में लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की हो? तो कब कब? when? तो यस, ड्यूरिंग फ्लड, ओके, जब पानी की बाढ़ आई थी तब क्या है लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। Then you can write down. Now, why do people live together in a neighborhood? तो लोग अक्सर एक जगह पर पास पास क्यों रहते हैं? Why they are living together in neighborhood? तो to reach out, okay, reach out to each other during time of crisis, okay, जब नेबर्स को ज़रूरत पड़ती है तब हम बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जैसे कि देयर लाइक ट्रबल, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज एंड शेयर देयर हैप्पीनेस। इसीलिए हमें क्या है
पड़ोसी की ज़रूरत पड़ती है और उसके साथ क्या है रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए. सो दैट ही इज़ द फर्स्ट neighbors are the first who will help you in any type of problem, difficulties or trouble. Then imagine living in a place where there were no other houses or people around. What would it be? तो कल्पना करो अगर तुम्हारा घर अपने इलाके में अकेला घर होता, यानी तुम्हारे आसपास कोई न रहता तो कैसा होता. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल whom would you play with whom would you celebrate festivals and special days, would you be scared. ओके, जैसे तुम किसके साथ खेलते, क्या अकेले डर लगता, सभी त्योहार और ख़ास मौके किसके साथ मिलकर मनाते हैं. दिस ऑल दिस थिंग. तो इमेजिन देन हाउ वुड यू इट विड बी. तो यू विल फील बोरिंग इफ़ यू आर लिविंग इफ़ यू आर लिविंग alone in one area, or your house is the only one in one area, then you will get bored. And with whom you will celebrate your festivals and special days. Okay, there will not be anyone around you to celebrate festivals and special days. Okay, whom would you play with? There is no one to play, there is no children around to play. Okay, and would you be scared? So yes, you will also get scared as there is no one around you. आपके आसपास कोई घर ही नहीं है तो आपको डर तो लगेगा ही. Now, people face a lot of difficulties when they lose people from their family or their houses and belongings. तो लोगों को कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिनमें जान और माल का भारी नुकसान होता है. In newspaper of the last 1 month, look for the news related to such disasters: earthquake, floods, fire, cyclones, etc. in different parts of the world. Collect this news report and paste them in your notebook. You're not going to do this. कई लोग बेघर हो जाते हैं पिछले कुछ एक महीनों के अखबारों से दुनिया में आए भूकंप, बाढ़, आग, तूफान एक्सेट्रा के बारे में समाचार इकट्ठा करो और you have to copy that article related to earthquake, floods, fire, cyclones, and you have to stick in your notebook. Okay? You are not going to do that. If you get, you just read it, but you are not going to cut and paste in your notebook. Your news report. Make your own report which mentions the following. तो तुम अपनी समाचार रिपोर्ट तैयार करो जिसमें इन बातों की क्या है जिक्र की गई हो. कॉज ऑफ द डिजास्टर, डेट एंड टाइम. तो संकट का कारण, कॉज ऑफ द डिजास्टर मतलब वो डिजास्टर क्यों आया. ओके, दैट इज कॉज. डेट उसकी तारीख और समय. व्हाट काइंड ऑफ डैमेज डिड इट कॉज टू लाइव्स, बिलोंगिंग्स एंड लाइवलीहुड्स. तो किस किस तरह के नुकसान हुए, जैसे कि जान का नुकसान, माल का नुकसान और रोज़गार का नुकसान. विच पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प एंड विच गवर्नमेंट ऑफिसेज और अदर ग्रुप्स. तो कौन कौन से लोग मदद के लिए आए और जिम्मेदारी ली, जैसे कि कौन कौन से सरकारी दफ्तर तथा अन्य संस्थाएं. तो हु केम टू इट, you can write down. Okay, lot of people came there, like just we have seen. Okay, it depends on the disaster, which disaster has come. In flood who a lot of in flood who will help you. Okay, only government people will help you, or those people who know how to swim, they will help you. Okay? And after that, government people like army people or military people, okay, they will come and run the rescue operation to help everyone and to provide them
provide them with food, water, medicine, clothes, etc. Now if there is no rain, crops can fail and there can be a drought. तो क्या तुम्हारे इलाके में कभी लोगों ने भूखमरी, ओके, दैट इज़ कॉल्ड, और या सूखा, ड्राउट को हम जब 2-3 साल के लिए बरसात नहीं आती है और हमारी जो फसल है खेत में वो क्या है, ख़राब हो जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्राउट. बट फूड फॉर पीपल कैन बी ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस सो डैट देर इज़ नो famine. और खाने के कीजिए, खाने के लिए जो, और खाना जो दूसरी खाना खाने के लिए दूसरी जगह से आता है या ले आते हैं उसको हम फेमाइन कहते हैं. वो क्या है, उस फेमाइन को भूखमरी कहते हैं. विच मीन्स पीपल डोंट हैव टू स्टे हंग्री एंड दे डोंट डाई ऑफ हंगर. ओके, भूखमरीज से लोग मर ना जाए. ओके, इसके लिए खाना हम दूसरी जगह से लाते हैं, लेकिन उसको हम भूखमरी कहते हैं, दैट इज़ फेमाइन. और बरसात नहीं आती और फसल बिगड़ जाती है तो उसको हम ड्राउट कहते हैं. आप दुकाળ પડે એવું કહીએ ને ગુજરાતીમાં, એને ड्राउट કહેવાય. Now, have people in your area ever got affected by famine or drought? तो तो ऑलरेडी अवर्स में दिया है 8 आवर्स, लेकिन अलग कौन सा है क्वेश्चन हमें अवर्स का. हैव पीपल इन इन तो हमारे इलाके में क्या कभी फेमाइन या भूखमरी या दुकाળ का सामना करना पड़ा? फाइंड सर्च रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मेक योर ओन रिपोर्ट. आपको न्यूज़पेपर में पढ़ना है. ओके, दुनिया में बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर क्या है, कोई कभी कभी क्या है, फेमाइन या ड्राउट आता रहता है. वो रिपोर्ट आपको क्या है, पढ़ना है और उसको मेक योर ओन रिपोर्ट, वो पढ़ के आपको अपना खुद का रिपोर्ट बनाना है, जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है. ओके, कॉज ऑफ द डिजास्टर, डेट एंड टाइम, व्हाट काइंड ऑफ डैमेज डिड इट कॉज, विच पीपल केम फॉरवर्ड, लाइक दैट. देन you may need some help from this in case of an accident or emergency. तो किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है. फाइंड आउट एंड राइट देयर एड्रेसेस एंड फ़ोन नंबर्स. ऐड मोर नेम्स टू द लिस्ट. इनसे संपर्क करने के लिए तुम्हें इनके फ़ोन नंबर तथा पूरा पता कॉपी में लिखो. इस लिस्ट में कुछ और भी नाम ऐड कर सकते हो. फर्स्ट वन इज़ फायर इंजन और एड्रेस, फायर स्टेशन का एड्रेस. अगर आपके एरिया में फायर स्टेशन है तो उसका आपका एड्रेस लिखना है और फ़ोन नंबर लिखना है. एंड इफ़ यू डोंट नो द फ़ोन नंबर, यू कैन राइट डाउन द इमरजेंसी फ़ोन नंबर. इफ़ यू डायल 101, okay, then it will directly go into the fire station office. Then nearby hospital, उसका आपके आसपास में नज़दीक में जितनी हॉस्पिटल है उन सभी हॉस्पिटल को आपके एड्रेस लिखना है और उसके फ़ोन नंबर भी लिखने हैं. हॉस्पिटल के लिए कोई इमरजेंसी नंबर नहीं है. यू हैव टू राइट डाउन द लैंडलाइन नंबर्स और यू हैव टू राइट डाउन द डॉक्टर्स नंबर. एम्बुलेंस के लिए क्या है, आपको you know all of you that if you dial 108, then ambulance, you can call the ambulance at your place. Then police station के लिए आपको 100 डायल करना है. if you dial 100, then it will directly ring into the police station. or in any emergency, if you dial 112, okay, they will give you the information on that number what to do. Now डिफ़िकल्ट टाइम्स. राइट ए रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तो इन सारे वर्ड्स को मिला के एक रिपोर्ट बनाना है, जैसे कि फ्लड्स, रिवर वाटर, इंजर्ड पीपल, फूड पैकेट्स, रेस्क्यू वर्क, कैंप्स, डेड बॉडीज, डेड एनिमल्स फ्लोटिंग इन वाटर, हाउसेस अंडर वाटर, aerial survey to see the scene of disaster from a plane, sad people, disease spread by dirty water, homeless people, trapped people,
Okay, all these things you have to combine, or you have to use this word in your report. So let us start. Huh? The river deviated dramatically in the district of Anand. Deviated मतलब river, नदी जो है, नदी ने अपना क्या है, जो फ्लो है, वाटर फ्लो होता है, उसका रूट चेंज हो गया है क्योंकि बहुत बारिश हुई थी. Then as a result, the river water submerged hundreds of villages. तो इसकी वजह से आसपास के गांव में पानी घुस गया है. Many people died and many ran away from their homes. कई लोग मर गए और कई लोग घर छोड़कर चले गए. Dead bodies of human and animals can be seen floating around. Okay, dead bodies of मतलब ह्यूमन लोगों की लाश और लोगों की और एनिमल्स की लाशें क्या है, पानी पर तैर रही है. Several camps have been set up for the people. और कई लोगों के लिए टेंट सेटअप किए गए हैं. People still trapped in falls are being rescued by a team from Air Force and Navy. और जो लोग क्या है, ट्रैप हो गए हैं, ओके, वो जो लोग फंस गए हैं, उनको बचाने के लिए क्या है, राहत कार्य का काम एयरफोर्स वाले और नेवी वाले कर रहे हैं. फूड पैकेट्स आर बीइंग गिवन टू द पीपल. और उन लोगों को क्या है, फूड पैकेट्स सप्लाई किए जा रहे हैं. द चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस अ रिलीफ पैकेज फॉर ईच अफेक्टेड फैमिली. और जो लोगों को जिन परिवारों को इस फ्लड में बहुत नुकसान हुआ है, उन लोगों को चीफ मिनिस्टर ने क्या है, कुछ पैसे देने की घोषणा की है. नाउ this will, what we have learned, this will come in question answers. Okay, now here we end our chapter. Now let us discuss the worksheet. પહેલા એક બાજુ વિભાગ અ વાંચી જઈએ, પછી વિભાગ બ આપણે રીડ બી નંબરમાં શું છે, પછી આન્સર શોધીએ. બરાબર? એટલે એક બી નંબરનો જે વિભાગ સમ છે, અ માં આપણને 3 4 ડેઝ વાળો ને, લખીને આપ્યા છે. પહેલું આપ્યું છે, શું ઈ આપ્યું કહું છે? છું, રીડ 3 કરો. ડેઝ વાળો ને. રીડ કરો એટલે હેલો રીડ કરવાનું છે આપણે. વેપારી. હેલો બરાબર? બીજું શું આપ્યું છે? દૃષ્ટિ ફકીર. બીજું આપ્યું છે રાજા. રીડ કર ને, રીડ કર. ચોથું આપ્યું છે Okay, we are not going to fill in the blanks, true or false. Let us start with answer the following question in one sentence. What is natural calamity? तो प्राकृतिक जो उपाधि क्या है ना, उसको हम नेचुरल कैलेमिटी कहते हैं. कुदरती आफत શું કહેવાય ને, કુદરતી આફત. कैलेमिटी दैट अकर्स ड्यू टू नेचर इज कॉल्ड नेचुरल कैलेमिटी. ओके, जे आफत नेचुरली आती है, कुदरती आती है, उसको हम नेचुरल कैलेमिटी कहते हैं. व्हाट डिवाइस डू इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स गिव टू पीपल व्हाइल बिल्डिंग हाउसेस? तो what advice do engineers and architects give to people while building houses? ओके, तो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट लोगों को घर बनाने के लिए कौन से एडवाइस देते हैं? तो दे engineers and architects advise people to use earthquake resistant designs, okay, and materials to build their houses. तो उनको ऐसी एडवाइस देते हैं, उनको ऐसी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइंस देते हैं और ऐसे कुछ मटेरियल्स का नाम देते हैं जो घर बनाने में उपयोग करते हैं और वो अर्थक्वेक में ज़्यादा नुकसान नहीं करते. नेम ऑफ द डिसीज दैट स्प्रेड्स आफ्टर अ नेचुरल डिजास्टर ऑकर. जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो उसके बाद कौन कौन सी डिसीज़ स्प्रेड होती है? तो कॉलेरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस, मलेरिया एंड डेंगू एक्सेट्रा. व्हेन एंड वेयर डिड सुनामी अकर्ड इन इंडिया? तो सुनामी कब और कहाँ इंडिया में आई थी? तो ऑन 26 दिसंबर 2004 इन चेन्नई.
हाउ शुड वी हेल्प व्हेन अ कैलामिटी अकर्स। तो हमें जब कुदरती आफत आती है तो हमें कैसे मदद करना चाहिए, जैसे कि वी शुड हेल्प इन कैश और काइंड व्हेन अ कैलामिटी अकर्स। या आपको कैश पैसे दे सकते हो, या आप क्या है आप अपनी हेल्प लेकर खुद जा सकते हो, जैसे कि फूड ले जा सकते हो, मेडिसिन, पानी, क्लोथ्स एक्सेट्रा। डिफाइन फ्लड्स। ओके, तो जब बाढ़ आती है ना तो उसको हम फ्लड कहते हैं। ड्यू टू हैवी रेन वाटर इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम रिवर विल फ्लो एंड कवर द एरिया विच इज़ यूजुअली ड्राई आर कॉल्ड फ्लड्स। ओके, जब बहुत भारी बारिश होती है तो बहुत सारा पानी रिवर में से क्या है एक ऐसे एरिया पर फ्लो होता है जो सूखा रहता है, तो उसको हम फ्लड कहते हैं। देन अर्थक्वेक, भूकंप, इट इज सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में क्या होता है, वो हमारी धरती जो है वो अचानक हिलने लगती है, क्योंकि धरती के नीचे क्या है कुछ मूवमेंट हो होते हैं, धरती के नीचे जो लेयर्स रहते हैं ज़मीन के वो हिलते रहते हैं, इसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। वो क्यों हिलते हैं, दैट यू विल लर्न इन हायर स्टैंडर्ड। सुनामी, it is a natural disaster in which series of giant waves of water will move towards the seashore and enters into the village or city due to earthquake or volcanic eruption from seabeds। और तो ये एक क्या है कुदरती आफत है जिसमें क्या है बहुत सारे પાણી કે વેવ્સ, ઓકે, પાણીના મોજા, બહુ જ મોટા મોટા પાણીના મોટા અને જાડા પાણીના મોજા ये कई बाजू मोता है, दे विल मूव टुवर्ड्स द सी शोर। वो क्या है दरिया किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं एंड और वो वहाँ पर गांव या सिटी में घुस जाते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, तो क्या है जो दरिया के नीचे सी बेड में क्या है एक अर्थक्वेक होता है या वॉल्केनिक इरप्शन होता है, और तो वॉल्केनो इरप्ट होता है, इसकी वजह से सुनामी आती है। भूकंप या ज्वालामुखी, ओके, सी बेड जो दरिया के नीचे, ओके, जिस जगह पर भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटता है, ओके, तो वहाँ पर सुनामी डेवलप होती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Now, how do government and non-government agencies help when a calamity occurs? तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के लोग, उसी एजेंसी या संस्थाएं कैसे कुदरती आफत में मदद करती हैं। तो दे प्रोवाइड हेल्प बाय गिविंग फूड, वाटर, क्लोथ्स, टेंट एंड मेडिसिन टू अफेक्टेड पीपल। ओके, जो लोगों को क्या है ये कुदरती आफतों का सामना किया है उनको खाना देते हैं, पानी देते हैं, कपड़े देते हैं, टेंट देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। मोर ओवर दे ऑल्सो रन द रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर द पीपल हु आर ट्रैप्ड अंडर द रबल ऑफ द फॉलन बिल्डिंग्स। और जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको निकालने में क्या है राहत का कार्य करते हैं। what type of damage is caused when an earthquake occurs? तो जब अर्थक्वेक आता है तो कैसा नुकसान होता है। तो when an earthquake causes loss of life and property। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, LIFE लाइफ लिखना है आपको, मैंने लिखा है LIFI। सो एन अर्थक्वेक कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो जान भी, बहुत लोगों की जान चली जाती है और प्रॉपर्टी को नुकसान भी होता है। मैनी पीपल विल गेट इंजर्ड एंड देयर बिलोंगिंग्स विल गेट डैमेज एंड ट्रैप्ड अंडर द रबल ऑफ फॉलन बिल्डिंग्स। बहुत सारे लोग क्या है घायल हो जाते हैं और उनके घर की चीज़ें क्या है वो मलबे के नीचे दब जाती है। ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स विल ऑल्सो फॉल डाउन। ओके, झाड़, यहाँ पर ट्रीज का स्पेलिंग भी रॉन्ग है, तो TREES। ओके, ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स विल ऑल्सो फॉल डाउन। व्हाट डैमेज इज कॉज्ड बाय फ्लड्स? तो फ्लड की वजह से जब बाढ़ आती है तो उसकी वजह से कैसा नुकसान होता है। तो विलेजेस ऑन बैंक्स ऑफ रिवर विल बी मोर इफेक्टेड। नदी के किनारे जो बसे गांव है या सिटी है उनको ज़्यादा इफेक्ट रहता है या ज़्यादा नुकसान पड़ता है। रॉ हाउसेज, हट्स, पीपल एंड एनिमल्स लिविंग इन लो लाइंग एरियाज विल फ्लो अवे विथ
वाटर। कच्चे घर, झोपड़ियाँ, लोगों और एनिमल्स जो लो लाइन मतलब नीचे के एरिया में रहते हैं, वो सभी क्या है पानी के साथ फ्लो हो जाते हैं। रोड एंड रेल नेटवर्क विल बी अफेक्टेड। रोड एंड रेल नेटवर्क दोनों को इफेक्ट पड़ेगा। ओके, वो चल नहीं सकेंगे क्योंकि रोड्स डैमेज हो गए होंगे और पटरियाँ उखड़ गई होंगी। वी विल सफ़र फ्रॉम डिसीज एंड इवन एपिडेमिक में स्प्रेड। तो हमें क्या है रोग चाड़ो फाटी निकल से एंड इवन एपिडेमिक में स्प्रेड। एपिडेमिक એટલે રોગચાળો ફાટી નીકળે and people will suffer from disease. How should you behave when a natural calamity occurs? अगर कोई कुदरती आफत आती है तो उस समय हमें कैसे बिहेव करना चाहिए? तो डू नॉट गेट, यहाँ पर भी GET गेट लिखना है। डू नॉट गेट पैनिक एंड रिमेन काम। आपको घबराना नहीं है, शांति से काम लेना है। मूव टू सेफर प्लेस एंड स्टे देयर टिल कैलामिटी स्टॉप। आपको कोई एक सेफ जगह पर चले जाना है और वहाँ पर रुकना है जब तक वो कुदरती आफत ख़त्म नहीं हो जाती है। इफ़ वी आर ट्रैप्ड देन वेट अंटिल रेस्क्यू ऑपरेशन इज़ ऑपरेटेड और एनी हेल्प इज़ रिसीव्ड। अगर आप किसी तरह से बाहर ना निकल सको, सेफ जगह पर ना पहुँच सको और फंस गए हो तो आपको वहाँ पर रुकना है जब तक कोई राहत कार्य करने के लिए आता नहीं है और किसी की हेल्प आपको नहीं मिलती है, तब पर आपको वहीं पे रुकना है। गिव रीजंस व्हाई वी शुड मूव आउट टू ओपन स्पेस व्हेन एन अर्थक्वेक ऑकर्स। तो जब भी भूकंप आता है तो हमें क्या है कोई खुली जगह पर क्यों चले जाना चाहिए? बिकॉज इन अर्थक्वेक okay shaking of the ground happens, or you can say because due to shaking of the ground buildings may get collapse and fall on us leading to our death, or we may also cause serious injuries. तो भूकंप में जब धरती हिलती है तो बहुत बिल्डिंग गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। ओके, इसीलिए वो बिल्डिंग या वो रूफ या वॉल हमारे ऊपर ना गिरे, इसीलिए हमें क्या है वी हैव टू गो टू एन ओपन स्पेस। Why we should lie down under a strong thing like a table if we cannot go out of house when an earthquake occurs? तो हमें अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या है, हम अगर बाहर ना निकल सके तो घर में अगर कोई स्ट्रॉन्ग थिंग जैसे कि टेबल रहेगा तो वो टेबल के नीचे लाई डाउन क्यों कर देना चाहिए? तो बिकॉज टेबल इज़ अ स्ट्रॉन्ग थिंग एंड इट विल टेक द ब्लो कॉज बाय द रबल ऑफ द हाउस। या घर का रूफ या दीवार टेबल के ऊपर गिरेगी तो वो टेबल टूटेगा नहीं, और अगर हम टेबल के नीचे रहेंगे तो वो क्या है हम वो रूफ और जो दीवार है हमारे ऊपर गिरने से बच जाएगी। वाई सम पीपल नीड साइकोलॉजिकल हेल्प व्हेन अ कैलामिटी ऑकर्स। तो कुछ लोगों को क्या है कुदरती आफत आती है तो वो घबराए हुए रहते हैं, तो उनको हमें मेंटली हेल्प करना चाहिए। बिकॉज कैलामिटीज़ कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या है कई लोग मर भी जाते हैं और घर की प्रॉपर्टी को नुकसान भी होता है, तो इसीलिए लोग घबरा जाते हैं, अभी मैं क्या करूँगा, टेंशन में आ जाते हैं। तो मैनी पीपल गेट्स इंजर्ड एंड इवन लॉस देयर होम्स सो दे नीड सिंपैथी इन टाइम ऑफ सॉरो। तो ये ऐसे दुखी समय पे हमें उनको आश्वासन देना चाहिए। वाई डिसीज स्प्रेड आफ्टर अ नेचुरल डिज़ास्टर। मतलब कोई भी कुदरती आफत आती है तो वो ख़त्म होने के कुछ दिनों के बाद और कुछ दिन में ही क्या है डिसीज स्प्रेड होने लगती है, कई डिसीज स्प्रेड होने लगती है। बिकॉज कंटामिनेटेड वाटर इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग। भूकंप या कोई भी कुदरती आफत आने के बाद हम जो खाना पकाते हैं और पानी पीते हैं वो क्या है गुड क्वालिटी का नहीं रहता है। બેડ સ્મેલ કમિંગ ફ્રોમ સ્લાઇમ એટલે કાદવ થઈ ગયો હોય પણ બાઢ આવી હોય તો પછી કાદવ થઈ જાય બધી બાજુ। ओके, सो बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम स्लाइम एंड डेड बॉडीज, और जो लोग मर गए हैं उनमें से भी बदबू आती है। एंड ड्यू टू मॉस्किटो बाइट्स, और बहुत सारे मच्छर क्या है ब्रीडिंग चालू हो जाता है और बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं और उनके काटने से भी हमें क्या है मलेरिया होता है। सो हियर वी एंड अवर चैप्टर। Okay, have a nice time and see you soon and have a nice day. Thank you everyone.